से काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, वरना चले ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। So this is basically the biosignaling. That is the transfer of message. So there are the six, remember, there are six basic mechanisms for the transfer of signal from one source to another source. And this is very important. This is the most important Viva question of Professor Nakshap. Remember this. Professor Nakshap asks you to write down. He gives you a paper. वो आपको एक paper देते हैं and he asks you to write down and give the short summary in Viva. I'm not saying in the written paper. I'm saying in the Viva to write these six pathways. These six pathways. So I will be throwing light on these six pathways because there are only these six pathways that are major pathways, that are major biosignaling pathways occurring in the human body, and the defect of the pathway can result in a catastrophe. They can result in the different diseases. I will be telling you at your level, the knowledge of these diseases is not very important, but only one disease that is very important at your level, that was asked in 2015 prof in the biochemistry paper. I will be throwing light on that disease, on that particular disease. So first of all, you must have a knowledge about what is ligand and what is a receptor. Remember one thing, a ligand A ligand is a substance that activates a receptor. Anything that activates a receptor is a ligand. It can be a protein, it can be a lipid, and it can be a carbohydrate. Ligand वो substance होता है जो receptor पे bind करता है और receptor को activate करता है. It can be anything. I repeat again. It can be a protein. It can be a growth factor. It can be a lipid. It can be a gas material. It can be nitric oxide. So anything which binds to and activates the receptor is a ligand. And what is receptor? It is a macromolecular complex embedded within the membrane or freely floating inside the cell or outside the cell. What I mean by this, I repeat again. A macromolecular complex embedded within the membrane or freely floating inside the cell or outside the cell with which the ligand binds is the receptor. So a ligand is a substance which activates a receptor, and a receptor is a macromolecular protein complex which binds the ligand. So they are the six pathways. I am telling you a short summary, then I will be throwing light in the depth of these pathways so that it will be very easy for you to do this. आप इसके बाद किसी भी सोर्स से पढ़ें, either the slides of anyone or any book at Marx, Linger, it will be easy for you. It will take half an hour for you to revise this thing. The first, that this is the most important, this is the G protein coupled receptor. We also called is that GPCR. This is the most important one at your level, at the level of first year MBBS. This is the most important, and all departments expect that you know about this pathway. वो सारे आपसे करते हैं, ये expect करते हैं कि आपको at least you must know about this pathway. And if you don't know about this pathway, so वो आपको मुश्किल से पास करेंगे. So this is the G protein coupled receptor. What I mean by G protein coupled receptor, I will be telling you in detail. So the second one is the receptor tyrosine kinase. We can divide the second pathway into 2A. You can see here, just follow the cursor. This is the 2A and this is 2B. There are certain types of receptors that have the tyrosine kinase domain. ऐसे रिसेप्टर्स जिनकी टायरोसिन काइनेज डोमेन होती है, एक वो टाइप के रिसेप्टर हैं. एक वो रिसेप्टर्स हैं जो टायरोसिन काइनेज डोमेन को बाइंड करते हैं, उनकी अपनी डोमेन नहीं होती. तो 2A वो होते हैं जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होती हैं. यू कैन सी ये एक रिसेप्टर है, इसके नीचे ये जो बल्स है, दिस इज द टायरोसिन काइनेज डोमेन. दिस इज द टायरोसिन काइनेज डोमेन. एंड अगर ये डोमेन किसी और डोमेन प्रोटीन से बाइंड करे, दैट इज टायरोसिन काइनेज, that will be 2B. The third type of the signaling pathway is receptor guanylyl cyclase. This is the receptor, this forms the CGMP, this is the receptor guanylyl cyclase. The fourth type of signaling pathway is gated ion channels. You have studied this gated ion channels in your that is the nerve action potential chapter, nerve conduction chapter, that whenever the substance bind to these gated ion channels, this receptor open up and a series of or the large number of molecule passes through this receptor. The fifth one, that is the adhesion receptor.
I will be telling you this is a very important receptors. Why this is very important? Because mutation in this receptor is the reason behind cancer. I repeat again. The mutation in this adhesion receptor is the reason behind the development of the cancer. So this is a very important. Professors have asked this question that mutation in which pathway can lead to development of cancer. Mutation in any pathway can result in the development of cancer, but it is the most important the adhesion receptor, the integrin, and the cytoskeleton complex, that mutation. And the last is the steroid pathway, that is the nuclear receptor pathway. So these are the six pathway. I will be throwing light on this. So I repeat again, the G protein coupled receptor number one, the receptor that are kinases or that bind kinases. This is the 2A and 2B. Receptor guanylyl cyclase pathway. This is the third type of pathway. Gated ion channel pathway. This is the fourth type of pathway. The adhesion receptor pathway. This is the fifth type of pathway. And the last is the nuclear receptor pathway or the steroidal pathway, in which the receptors are present within the nucleus. I repeat again, the receptors are present within the receptor. So it is differentiated from other five types as the receptors are within the nucleus. Other five types have receptors outside the nucleus. So these are the six pathways. So starting with the name of Allah, the first pathway that is very important. I repeat again, that is the G protein coupled receptors. So I will be showing you certain diagrams and telling you about the G protein coupled receptors. So this is the general description. As I already told you, I will be throwing again the light on it. So whenever there is the stimulus, there is a stimulus, there is the release of the message in the form of chemical messengers. These messages transmitted towards the certain designated or targeted receptors where this signal binds, and there is the whole cascade of this signal transduction pathway. It is a beautiful process. Allah subhanahu wa ta'ala has made this a very beautiful process that is occurring within the cell. When you will studying this, you will be enjoying this, that this is very good. So I repeat again, you can see whenever there is a secretion stimulus, the secretory cell secretes the chemical messenger. The chemical messenger travels in the blood. How it travels in the blood? It can either freely floats in the blood or it can bind to certain carrier protein. As we have studied in the hemes and heme degradation, that the bilirubin binds to the albumin. Bilirubin binds to the albumin. So same as like this, there are certain receptors for the hormones that carry those that carries those they are the certain carriers for the hormones that carries those hormones towards the target. ऐसे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं या ऐसे कैरियर्स अल्लाह ताला ने रखे हैं जो उस लाइजेंट को या उस मैसेंजर को लेके जाते हैं, कैरी करते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्शन, दैट इज द रिसेप्टर. So it binds to the receptor and there is signal transduction cascade. At the end result of the signal transduction cascade, there is variety of reactions inside the cell. जब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड होगा, सेल के अंदर चेंजेस आएंगी. तो जो हमने स्टिमुलस दिया उसका रिस्पॉन्स आएगा विद इन द सेल, और ये जो इसका पाथवे फॉलोड हुआ है, दैट इज बेसिकली द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. So coming towards the next slide, that is the specificity of the signal response. So the receptor is specific for a specific ligand. Remember, these are the basic concepts. For example, let us, in our body there is a hormone that is cortisol. The cortisol is specific for the receptors of cortisol. It will not bind to the receptors of epinephrine. Remember, so the ligand is specific and the receptor is also specific for the ligand. This is how the reactions are controlled in the body. अगर ऐसा specificity ना होती तो एक ligand secrete होता. फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन क्रिएट होता है, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन. अगर ये जाके थायराइड के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दें, स्ट्रेस में ऑलरेडी बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो रहा होता है. अगर स्पेसिफिसिटी ना होती रिसेप्टर्स की, लेजेंड की, यही जाके बाइंड कर जाते थायराइड रिसेप्टर्स के साथ, और हाइपरथायरॉइडिज्म के जो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, तो वो भी साथ रिस्पॉन्स आना शुरू होता है. तो दिस इज हाउ रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक.
So coming towards, without any delay, coming towards about the first that is very important, that is the G protein कपल रिसेप्टर पाथवे. अब इसको आप जिस गौर से समझ लिया, ये इस साल भी प्रॉफ के अंदर आया और ये बहुत आता होता है. अब मैं आपको जो है एक एक जो सिक्स सिग्नल, दिस इज सिग्नलिंग, ये सिक्स जो पाथवे से ये आपके सिग्नलिंग का कोर्स का पाथवे. अब इसके एक एक पे आई विल बी थ्रोइंग लाइट ऑन इट एंड लिसन केयरफुली. अब मैं करूंगा क्या, जो भी मैं पाथवे डिस्कस करूंगा सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द लेजेंड, कि इस पाथवे के कौन से लेजेंड्स जो एक्टिवेट करते हैं. कभी कभार वो कह देते होते हैं गिव द सिग्नलिंग ऑफ दिस पाथवे या इलस्ट्रेट द सिग्नलिंग ऑफ दिस पाथवे एंड गिव द लेजेंड्स दैट एक्टिवेटेड, क्योंकि हर रिसेप्टर के डिफरेंट लेजेंड्स होंगे. इसी तरह मैं लेजेंड बताऊंगा, रिसेप्टर्स की आपको मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आगे चलने वाले सिग्नलिंग बताऊंगा. So the first is G protein coupled receptor. This is also called as heptahelicular heterotrimeric receptors. I repeat again. It is also called as heptahelicular heterotrimeric protein receptors. What I mean by heptahelicular heterotrimeric protein receptors, you can see in this diagram. Let me zoom this diagram. You can see in this diagram, this receptor is embedded within the membrane. And this receptor is having 7 helices, that is 1 2 3 4 5 6 7. So it is a heptahelicular. These helicular proteins move like a snake or the serpentine fashion. मतलब इनकी डोमेन्स इस तरह एम्बेडेड होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कि ये एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं, इस तरह एम्बेडेड होते हैं. That's why that is a very important Viva question. These receptors are also called as the serpentine receptors. Professor Saab will ask you in the Viva that what are the serpentine receptors, and you will be blank and you will be seeing as at his face that what is this. So these are the you will be saying that they are also called as heptahelicular heterotrimeric protein receptors or the G protein coupled receptors. Why they are serpentine? Because the heptahelicular domain moves through the membrane of the cell like a snake fashion. Just like a snake fashion, it goes in and goes out and goes in and goes out and form the 7 helices. And why heterotrimeric protein? These receptor bind to 3 proteins, alpha, beta, and gamma protein. So these are the 3 different proteins that binds to these heptahelicular receptors. So the G protein coupled receptors are also called as heptahelicular heterotrimeric receptors. And G protein coupled, why we call this as G protein coupled receptors? We call this as G protein coupled receptors because they bind these G proteins. What are these G proteins? I will be telling you why they are called as G proteins. These alpha, beta, and gamma subunits are called as G proteins. So now throwing light on this alpha, beta, and gamma. Remember, बहुत important बात बताने जा रहा हूँ आपको. The beta and gamma domains are basically embedded in the membrane and they serve as a anchor for alpha domain. जो बीटा और गैमा डोमेन है ये मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड हुई होती हैं. क्यों? क्योंकि ये अल्फा डोमेन को बाइंड करके रखती हैं और अल्फा डोमेन को अटैच करके रखती हैं विद द हेप्टा हेलिकुलर रिसेप्टर. कोई आपसे पूछे बीटा और गैमा डोमेन का क्या काम है, दे हैव नथिंग इन द सिग्नलिंग पाथवे, दे आर जस्ट द एंकरिंग प्रोटीन दैट एंकर इन द अल्फा रिसेप्टर. It is the alpha subunit. It is the alpha subunit which is the main role player. इस G protein coupled receptor का हीरो कौन है हमारे पास? That is the alpha subunit. This alpha subunit, अब इस बात को गौर से समझें तो आपको सारी रिसेप्टर की एक्टिवेशन समझ आएगी. It binds to a substance that is GDP. इस alpha subunit की एक डोमेन होती है. You have studied domain, you know better than me what is the domain of a protein. एक डोमेन होती है that is GDP बाइंडिंग डोमेन. ये GDP को बाइंड करके रखती है. जब GDP अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड रहता है, दिस अल्फा सब यूनिट इज इनएक्टिव. अब whenever the signal come, जब भी हमारे पास लेजेंड आता है, it binds to the receptor, it gives the signal to the alpha subunit, the alpha subunit converts. अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वो एग्जामिनर एक्सटर्नल आए थे, उन्होंने फंसा लिया था बहुत सारे बच्चों को, मुझे भी याद है 4 year बैक, के GDP
अच्छा, डायग्राम में यूं बना होता है कि जीटीपी लीव कर रहा है, जीटीपी बाइंड कर रहा है. नो, इट इज नॉट लाइक दिस. दिस अल्फा सब यूनिट कन्वर्ट्स जीडीपी इनटू जीटीपी. मतलब ये जो जो जीडीपी इसने बाइंड किया होता है उसी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है. ऐसा नहीं होता कि ये जीडीपी को छोड़ देता है और जीटीपी को बाइंड कर लेता है. इट कन्वर्ट्स द अटैच्ड जीडीपी टू द जीटीपी. अब whenever gtp is bound to alpha subunit, the alpha subunit is active. अब जब जीटीपी बाइंड कर गया अल्फा सब यूनिट से, इट बिकम्स एक्टिव. इट लीव्स द बीटा एंड गामा सब यूनिट. ये बीटा और गामा सब यूनिट्स को लीव करता है. देन इट गोज टू अनदर प्रोटीन. This protein activates some other protein, then this protein activates some other protein. In this way, a cascade of reaction occurs and the cell response occurs. अब बात गौर से आपने, मैं रिपीट कर देता हूँ. जब एक लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर से, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, जिसकी एक्टिवेशन से अल्फा सब यूनिट के साथ जो जीडीपी बाइंड है वो जीटीपी में कन्वर्ट होगा. और हमें पता है कि जब भी जीटीपी अल्फा सब यूनिट से बाइंड करता है, इट बिकम्स एक्टिव. वो एक्टिव हो जाएगा, वो सिग्नल लेके जाएगा, वो छोड़ देगा बीटा गैमा कम्प्लेक्स को, वो मूव करेगा टुवर्ड सम अदर प्रोटीन, वो उनको एक्टिवेट करेगा, वो अदर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, सेकंड मैसेंजर जनरेट होंगे और सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा. अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर के अंदर? क्वेश्चन आता होता है गिव द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ जी एस और जी क्यू और जी आई. अच्छा, अब ये बात याद रखें कि जो जी क्यू प्रोटीन है इसके जो है वो मोर देन 11 टाइप्स हैं. आप 3 याद कर लें, आपके लिए इनफ है. जो जीटीपी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसके मोर देन 11 सब टाइप्स हैं, जिसमें से 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है: जी क्यू प्रोटीन, जी एस प्रोटीन, जी आई प्रोटीन. So इस दफा प्रॉफ में जी क्यू प्रोटीन आई थी. आई विल टेलिंग यू. So this is again the summary. You can see hormone. This is the receptor. The hormone binds to the receptor. This is the heptahelicular heterotrimeric. In the yellow shape, this is heptahelicular. This is the 3 subunits: alpha, beta, and the gamma. So whenever it activates, the GDP is converted into GTP. The alpha subunit leaves the beta gamma complex and binds to some other protein. Then there is the activation. So इस receptor की inactivation कैसे होगी? When the GTP is again converted to GDP, अल्फा सब यूनिट वापस आके बीटा गैमा से बाइंड कर देगा और सिग्नल खत्म हो जाएगा. सो इस तरह ये रिएक्शंस होंगे. अब ये जो हमारे पास ये डायग्राम है, दैट इज जी क्यू प्रोटीन. रिसेप्टर एक्टिवेशन का मैकेनिज्म सेम है, लाइगेंड डिफरेंट है और हमारे पास रिस्पॉन्स डिफरेंट है. अब इसको गौर से समझें. मैं से क्वेश्चन पूछूंगा इसके अंदर से एक, दैट इज जनरल आपकी असेस करने के लिए. यू कैन सी द you have studied this in the lipids, that is the phosphatidyl inositol. So which lipid is involved in cell signaling? That is the phosphatidyl inositol. You have studied, you know better than me. So you can see step 1, the receptor binds. So then there is the activation of alpha receptor. The alpha receptor binds the phospholipase C. The phospholipase C causes the conversion of PIP2, that is phosphodienosterol 4,5 bisphosphate, that is embedded in the membrane. You can see my cursor. Then it is, let me zoom this. Then this phosphodienosterol 2,3 bisphosphate is converted into diacylglycerol and inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट. ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो गया है फोस्फोलाइपेज की एक्टिव सी की एक्टिवेशन से. और इस फोस्फोलाइपेज सी को किसने एक्टिवेट किया है? ऑब्वियसली अल्फा सब यूनिट. यू कैन सी द अल्फा सब यूनिट जिसके साथ जीटीपी बाइंड है. फिर ये जो डैग है, इट देन मूव्स इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी. ये प्रोटीन काइनेज सी को इसने एक्टिवेट किया है. और जो इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट रिलीज हुआ था, इसने जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट किया. और जो जो प्रोटीन काइनेज सी है, उसने भी सेलुलर रिस्पॉन्स दिया है. जो कैल्शियम निकला है इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट की बाइंडिंग से ऑन द कैल्शियम रिसेप्टर, उसने भी आगे प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट किया. ये प्रोटीन काइनेज सी आगे जाके मल्टीपल एंजाइम्स को करेगी और हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा. सो लेट मी टेल एन एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस mechanism is occurring in the smooth muscle cells. Very important. जब आप एक एग्जांपल ले लें ब्लड वेसल्स की,
सो ब्लड वेसल्स जो हमारे पास होती हैं बॉडी के, उसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। सो जब को एडीएच जो होता है, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन, वेजोप्रेसिन, वो वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, वेजोप्रेसिन कहते हैं, ब्लड प्रेशर रेज करता है। सो वेजोप्रेसिन जब उसके रिसेप्टर होते हैं जी क्यू प्रोटीन, तो मैंने एक लेजेंड बता दिया आपको जी क्यू प्रोटीन का, दैट इज वेजोप्रेसिन। जब वेजोप्रेसिन जी क्यू प्रोटीन से बाइंड करता है तो सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है। एंड यू नो फ्रॉम द मसल फिजियोलॉजी, whenever there is a rise of calcium inside the cell, the muscle contract. So this is the mechanism, underlying mechanism behind the action of vasopressin on the muscle cells. तो अगर रिसेप्टर म्यूटेशन हो जाए, वेजल्स डायलेटेड रहेंगी, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, एंड द रिस्पॉन्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन कैन अंडरगोज इनटू हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, शॉक के अंदर जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। तो दिस इज हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म इन ऑपरेटिंग इनसाइड द बॉडी। सो दिस इज द जी क्यू प्रोटीन। अगर आपसे जी क्यू प्रोटीन के ऊपर नोट आए, डिस्क्रिप्शन आए, ये डायग्राम ड्रॉ करके ये स्टेप्स लेबल कर दें, नो वन विल डिडक्ट इवन अ सिंगल मार्क्स। और साइड पे हेडिंग देके लाइजेंड्स की आप लोग दो चीजें लिखते हैं, दैट इज इनफ फॉर यू, वेजोप्रेसिन एंड ग्लूकागोन एक्टिंग ऑन अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। आई रिपीट अगेन, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ग्लूकागोन का एक्शन जी क्यू प्रोटीन होता है। तो दिस इज जी क्यू प्रोटीन। तो यहीं से मैं आपको जीएस प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। ये लेट्स सपोज दिस इज द जीएस प्रोटीन, जीएस इज स्टिमुलेटरी, दैट इज सिंपल। यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी के बदले में जो प्रोटीन होगी, दैट इज एडिनाइल साइक्लेज। आई रिपीट अगेन, the ligand bind to the receptor is activated, the alpha subunits is activated by binding to the GDP, the activated alpha subunit then goes towards another protein, that is adenyl cyclase. This adenyl cyclase causes the conversion of ATP. This is not written here, just imagine this reactant is ATP into the product, that is cyclic AMP. So this cyclic AMP then cause multiple reactions inside the cell. So this is GS protein, that is the stimulative. इसके आप लोग याद कर लें, TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH, एफ नो सॉरी नॉट FSH, TSH, फिर आपके पास बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, वो GS प्रोटीन करते हैं। सो ये उसके लाइजेंड्स हो गए। आपसे कोई पूछे कि लाइजेंड्स क्या हैं GS पाथवे के, सो वी विल सेइंग एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, और जो मैंने आपको TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अब GI क्या है? GI आपने देखा होगा बुक्स के अंदर गिवन होता है, दैट इज स्मॉल आई, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी। अब इसमें बड़ी खास बात बारे में पूछी जाती है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी? रिमेंबर, द अल्फा सब यूनिट इज इनहिबिटरी। whenever this type of receptor is activated, this is not shown here, it inhibits the adenyl cyclase. This is inhibitory receptor, that's why we call it GI। बॉडी के अंदर बहुत रेयर थोड़े से रिसेप्टर्स होते हैं जो GI होते हैं, वो भी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली एड्रिनर्जिक अल्फा और बीटा की टाइप्स होती हैं। आई विल नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बिकॉज यू विल बी स्टडिंग दिस इन द थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी। सो वो रिसेप्टर्स होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं, क्योंकि उनका अल्फा सब यूनिट इनहिबिटरी होता है। अगर वो आपसे भी पूछेंगे जीएस के अंदर एस स्टिमुलेटरी क्यों का है, यू विल बी सेइंग बिकॉज द अल्फा सब यूनिट इज स्टिमुलेटरी। और अगर आपसे कोई पूछे कि जीआई में इनहिबिटरी क्यों का है, दैट इज अल्फा सब यूनिट इनहिबिटरी। तो अगर आपसे जीएस का है तो इस प्रोटीन को आपने एडिनाइल साइक्लेज लेबल करना है, यहाँ रिएक्टेंट की जगह एटीपी लिखना है, यहाँ साइक्लिक एएमपी लिखना है। और इनहिबिटरी का है तो अल्फा सब यूनिट जब यहाँ से बाइंड करेगा आगे कोई रिएक्शन नहीं जाएगा, यहाँ पे आपने बड़ा सा नेगेटिव साइन लगा देना, दैट इज इनहिबिशन। तो दिस कंप्लीट्स योर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अगर किसी सिग्नलिंग पाथवे में से फर्स्ट ईयर के लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट विल बी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। आई रिपीट अगेन, इट विल बी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, बाकी किसी से नहीं आएगा, आई गारंटी। लेकिन वाइवा में पूछेंगे आपसे, रिटर्न में अगर किसी क्वेश्चन आएगा दैट विल बी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आप लोग अभी जाके इसके बाद पिछले साल का प्रॉफ का क्वेश्चन उठा के देखें, you will see a question from the G protein coupled receptor. So the without any delay, the second type of mechanism is the JAK-STAT pathway. It is a very beautiful pathway. I am going in rapidly. जो सेकंड मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, जो आपके पास था रिसेप्टर दैट आर टायरोसिन काइनेज और दैट बाइंड टायरोसिन काइनेज, ऐसे रिसेप्टर
जो टायरोसिन काइनेज को बाइंड करते हैं, वो उसकी एक एग्जांपल है दैट 2B में जो हमारे पास आते हैं जैक स्टैट पाथवे। अब गौर से सुने, ये रिसेप्टर है, इसने ये ब्लू कलर, ये हार्पर की डायग्राम है, ये रिसेप्टर है, इसने ब्लू कलर की जो डोमेन्स बाइंड की हुई है दैट इज टायरोसिन काइनेज डोमेन। आपको बुक के अंदर यहाँ लिखा होगा TY या TK, दैट इज टायरोसिन काइनेज डोमेन। ये रिसेप्टर एक और प्रोटीन को बाइंड करता है दैट इज जैक। अब गौर से बात समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। whenever the ligand when binds to the receptor dimerizes। ये दो दरवाजे हैं, जब लाइजेंड आता है ये फटफट बंद हो जाते हैं। when the receptor, I am telling you about the steps, आपने इस तरह steps करके इस डायग्राम पे लिख देने हैं, that's completes your Jack step pathway। It is very easy, it is a beautiful process। so whenever the ligand binds to these receptors, the receptor dimerizes। as a result of dimerization the receptor becomes active। as a result of dimerization the receptor becomes active। so these receptor causes the activation of JAK protein। गौर से समझे, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है बाय डायमराइजेशन, ये जैक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जब ये जैक प्रोटीन एक्टिवेट होती है, ये अपनी फॉस्फोरिलेशन करती है। यू कैन सी अ पी हियर, दैट इज फॉस्फेट। whenever the JAK protein is activated, it phosphorylates itself। it also phosphorylates the tyrosine kinase domain। बड़े मजे की बात है, ये देखें एरो देखें, जब रिसेप्टर डायमराइज हुआ, इसने जैक को एक्टिवेट किया, जैक ने अपनी फॉस्फोरिलेशन की और टायरोसिन काइनेज की फॉस्फोरिलेशन की। जब टायरोसिन काइनेज की फॉस्फोरिलेशन होगी, इसके ऊपर आके अनदर प्रोटीन बाइंड करती है दैट इज स्टैट। एक मजे की बात, ये बाइंड टू टायरोसिन काइनेज डोमेन से करती है, लेकिन इसको भी एक्टिवेट जैक करता है, इसकी भी फॉस्फोरिलेशन जैक करता है। यू कैन सी फ्रॉम द एरो। सो फॉरगेट दिस SH2, बस आप ये स्टैट को याद रखें, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जैक स्टैट पाथवे। अब ये जो स्टैट है ना, ये भी वही उसी डायग्राम की आपको इलस्ट्रेशन है। देखें, ये जैक फॉस्फोरिलेट हुआ है, स्टैट आके बाइंड किया है, स्टैट की डायमराइजेशन होती है, दो स्टैट एक्टिवेटेड आपस में बाइंड करते हैं और ये न्यूक्लियस के इनसाइड जाते हैं। आई हैव नो डायग्राम। सो ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ये जैक डाइमराइज्ड फॉर्म में न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और जीन की ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं। इस तरह ये रिस्पॉन्स आता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत दफा पूछे जाते हैं आपसे कि इसके जो हैं वो लाइजेंड क्या है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। You have studied the erythropoiesis, that is a beautiful process regulating the or causing the senses of hemoglobin in the body। So blood, RBC की जो सेंसेस होती है बॉडी के अंदर, erythropoiesis, उसकी जो इथ्रोपोइटिन प्रोटीन होती है, जो बोन मैरो के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इथ्रोपोइटिन के, वो जैक स्टैट पाथवे को करते हैं। जब इथ्रोपोइटिन बैंड करती है, जैक स्टैट पाथवे एक्टिवेट होता है, हेमाटोजेनिक सेल्स के अंदर सिग्नल जाता है कि इरिथ्रोपोइसिस ज्यादा कर दो, इरिथ्रोब्लास्ट की सेंसेस ज्यादा कर दो। So this is how the JAK-STAT pathway occurs। This was the 2B pathway, the receptor that binds tyrosine kinase। The 2A रह गया हमारे पास। So वो इंसुलिन का है, वो मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा, वो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बाकी है उनको देख लेते हैं। अभी आपका जो है ना 70% कवर हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। आई होप you have understood this। If you have any questions you can ask, I will be opening the chat in the few minutes। The second one is the JAK STAT pathway, that is the 2B। 2A के अंदर टायरोसिन काइनेज है, वो इंसुलिन की पाथवे आ जाती है। जो ग्वानाइल साइक्लेज की है ना, वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा वो नहीं बताई, जो एडिनाइल साइक्लेज है ना, बेसिकली एडिनाइल साइक्लेज, वहां पे अगर ग्वानाइल साइक्लेज हो तो ये CGMP बनता है। अब दिस guanyl cyclase is how it is different from the G protein coupled receptor, remember, because there is no heptahelicular heterotrimeric domain for this guanyl cyclase। ये guanyl cyclase itself मेम्ब्रेन के अंदर अकोमोडेट होता है और इसके ऊपर ही आगे लाइगेंड बाइंड करता है, इसको कोई अल्फा सब यूनिट को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस इज अ सेपरेट सिग्नलिंग पाथवे। अच्छा, ये गेटेड आयन चैनल की कोई जरूरत नहीं करने की, ये वही हैं जो आप पढ़ के आए हैं। जिस तरह आप लोग मिस्थीनिया ग्रेविस की एग्जांपल ले लें, या फिर साइनैप्स की एग्जांपल ले लें। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, एसिटाइलकोलिन आगे बाइंड करता है, रिसेप्टर्स खुलते हैं, आगे
इनसाइड क्या जाता है, सोडियम जाता है, सोडियम जाने से आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सो दिस इज अ सिग्नलिंग, क्योंकि सिग्नल जा रहा है आगे। आई एम सॉरी। सो इस ये गेटेड आयन चैनल है। फिफ्थ जो एडिशन रिसेप्टर जो मैंने आपको बताया, ये कैंसर में इन्वॉल्व होता है। इसमें ये होता है कि कोई प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन से बाहर आ रही होती है और ये साइटोस्केलेटन को बाइंड कर रही होती है, जिसकी वजह से एंकर जो सेल्स होते हैं आपस में अटैच रहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के पास होते हैं जी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों के पास होते हैं वो क्या कहते हैं उसे, गैप जंक्शंस। वो क्या करते हैं, सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसी तरह ये एक पाथवे है जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, सेल से बाहर निकली होती हैं, जो साइटोस्केलेटन डोमेन ऑफ अदर सेल्स को पकड़ के रखती हैं। अब होता क्या, बड़े मजे की बात है, गौर से समझें। जब भी इस रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है, सेल्स जो होते हैं आपस का कनेक्शन छोड़ देते हैं, दे बिकम इंडिविजुअल्स। फर्स्ट एक कम्युनिटी में वो थे, एक दूसरे से अटैच थे। ये कैंसर सेल का एक मैकेनिज्म है, कैंसर की डेवलपमेंट का। कैंसर सेल्स आर इंडिविजुअल सेल्स, दे लैक देयर कम्युनिटी। इस वजह से आपने पढ़ा होगा कैंसर पूरी बॉडी में मेटास्टाइज कर गया, यही रीजन होती है। You will in future you will be seeing patients of the breast cancer or the prostate cancer and the different types of cancer in your life. If while you will be sitting in the clinical in your clinical, जब आप अपने किसी जगह बैठे होंगे, अपने ऑफिस में बैठे होंगे और कोई इंशाल्लाह यू विल बी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स, तो आपको कोई कैंसर का आएगा तो आप जब उसका एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और देखेंगे जो कैंसर है वो चला गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो द अंडरलाइन मैकेनिज्म कोई आपसे पूछे क्या है, तो आपके उसी वक्त दिमाग में याद आएगा, किसी बंदे ने हमें एक दिन बैठ के बताया था कि एडिशन रिसेप्टर्स की म्यूटेशन होती है, सेल्स अपना कनेक्शन छोड़ते हैं, जब कनेक्शन छोड़ते हैं इधर उधर फिरते फिरते कहीं और टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। For example, today I saw a patient of molar pregnancy, choriocarcinoma of the uterus. आज मैंने एक पेशेंट देखा गायनी वार्ड में कोरियोकार्सिनोमा का, एंड आई वाज अमेज्ड दैट द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो उसकी ब्रेन में डिपॉजिट हो गई थी। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेन के अंदर, और जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस आ रहे थे तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। कैन यू इमेजिन दैट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ईच मंथ द ब्लीड अकर्स इन द ब्रेन? व्हाई? बिकॉज जो कोरियोकार्सिनोमा है यूट्रस का, एंडोमेट्रियम को लेके सेल्स को, वो एंडोमेट्रियल सेल्स मेटास्टाइज हो गए ब्रेन के अंदर। जब भी वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सर्ज आती है, जब एंडोमेट्रियल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की ब्लीड तो करती करती है, ब्रेन में भी ब्लीडिंग होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट है ये भी आपका आ सकता है, ये स्टेरॉयड रिसेप्टर पाथवे है। अब कुछ रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका जो लाइजेंड होता है ये स्टेरॉयड होता है। और आपको पता है लिपिड बाय लेयर होती है, ये लाइजेंड इजिली स्टेरॉयड क्योंकि नेचर है, हाइड्रोफोबिक है, लिपोफिलिक है, इजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। न्यूक्लियर पोर, आपको शायद ये छोटा सा नजर ना आ रहा हो, ये छोटा सा न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे, इससे क्रॉस करके जाके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स बाइंड करता है, वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन को, एमआरएनए की सेंसिटिव डीएनए को रोकते हैं। दिस इज सिंपल। आपसे कहा कि स्टेरॉइड का पाथवे कौन सा है, जैसे बॉडी में कोर्टिसोल होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। सो वो ये पाथवे क्या पाथवे आपने ड्रॉ कर देना है, ये सारे ड्रॉ करना है। मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है, लेजेंड क्रॉस कर रहा है, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस कर रहा है और सीधा जाके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, वो रिसेप्टर जाके आगे सिग्नलिंग कंट्रोल करें। सो आप लोग देख सकते हैं कि इन 6 के 6 रिसेप्टर्स में से कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो जीन की ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्टली रेगुलेट करें। दैट इज अनदर वाइवा क्वेश्चन आस्क्ड बाय external professor multiple times in the previous years. They are the two you can see from this diagram. This is a brilliant diagram from the Leringer. I repeat again, this is a brilliant diagram. So these are the tyrosine kinase one and the second is the steroid. कोई आपसे पूछे जीन ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्टली कौन से रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे करती है, दैट इज tyrosine kinase and that is the steroid pathway. So these are the 6 pathways. I have thrown the light on these pathways with the legend of all of these and how these operate and what is the mechanism. ये addition के आगे कुछ नहीं होता, बस addition के आगे inside जो होता है वो सिग्नल होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. That is oncology portion we will studying in the 4th year or the final year as well as in second year biochemistry. Recently they have added the oncology portion, the molecular genetics in the second year syllabus. So
लास्ट दैट इज द इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। अभी मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आपको पढ़ाया जाए, लेकिन क्योंकि वाइवा में बहुत पूछा जाता है तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपको लाइट जो है वो थ्रो कर देता हूँ। अच्छा, जो साइक्लिक जीएमपी वाला पाथवे है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, वो कौन सी, उसका लेजेंड क्या है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखें। ये साइक्लिक जीएमपी के जो है इसका जो पाथवे कौन फॉलो करता है, दैट इज, इसका लेजेंड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। आपने सिडानाफिल फिनाइल इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए जो दी जाती है पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में, सर्कुलेशन में। सो साइक्लिक जीएमपी का लेजेंड ये है। मैंने सारे आपको लेजेंड्स बता दिए हैं, स्टेरॉइड्स के भी बता दिए हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा अब देखें, आपको ये रिसेप्टर्स के बारे में पता होगा तो आपको जब आप 30 में जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको पता होगा कि ये ड्रग्स के बारे में, जो आपके पास ड्रग्स होती हैं डिफरेंट, इट इज़ नॉट लिस्टेड गुड, लेट मी ओपन माय ओन स्लाइड्स। एक सेकेंड। अब हम इंसुलिन का पाथवे करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो बड़ा इजी सा है, छोटा सा है, इट विल टेक 5 मिनट्स आई थिंक। लेट मी शेयर दिस। आज ही आप लोग जाके इंशाल्लाह डायबिटीज़ डायग्नोस कर लेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डायबिटीज़ इन आवर बॉडी। तो these are my slides of the clinical endocrinology. Let me share. So don't worry, you will be seeing these slides in the secondary MBBS. I made this slide for the secondary MBBS biochemistry course. So the signaling pathway of the insulin. So this is a really beautiful diagrammatic presentation of the insulin. So remember one thing, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है ये 2A होता है, दैट इज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जिसकी अपनी ही डोमेन टायरोसिन काइनेज की होती है। ये रिसेप्टर्स हैं, आपको इसकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाइवे के दौरान आप पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तब आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। इट हैज़ फोर सब यूनिट्स, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा सब यूनिट्स बीटा से बाइंड करते हैं और बीटा सब यूनिट्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। वेन एवर द ligand binds to the alpha subunits, the beta subunits dimerizes। जब इंसुलिन बाइंड करता है अल्फा सबयूनिट से, बीटा सबयूनिट डायमराइज होते हैं। ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये टायरोसिन काइनेज डोमेन्स हैं। ये इसी रिसेप्टर को फॉस्फोरिलेट करती हैं। किस जगह पे फॉस्फोरिलेट करती हैं? टायरोसिन डोमेन को फॉस्फोरिलेट करते हैं, इसलिए कहते हैं टायरोसिन काइनेज डोमेन। उसी रिसेप्टर की बीटा सब यूनिट की, मतलब बीटा सब यूनिट के अंदर एक डोमेन है टायरोसिन काइनेज, जो अपने ही प्रोटीन की अनदर डोमेन टायरोसिन जिसका सब यूनिट है उसको फॉस्फोरिलेट कर रही है। जब उस पर फॉस्फोरिलेट करती हैं तो इसके ऊपर सर्टेन अदर प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं। आईआरएस का मतलब होता है इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट या इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट, और वो फर्दर आगे जाके बाइंड करती हैं। या फिर वो फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, या वो फिर फोस्फेटिडाइल इनसिटोल 3 काइनेज को एक्टिवेट करता है, या फिर वो जीआरबी प्रोटीन 2 को एक्टिवेट करता है। अब इसके दो सिग्नलिंग है मैकेनिज्म, में जल्दी से आपको बता देता हूँ। इंसुलिन आगे बाइंड की, रिसेप्टर डायमराइज हुआ, बीटा सब यूनिट फोस्फोलेट हुए, आगे दो तरह से जा सकता है, या मैप काइनेज पाथवे या PI3 के पाथवे। मैप काइनेज पाथवे से सेल ग्रोथ प्रोलिफरेशन होती है। अगर आप इतना भी बता देंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और PI3 के पाथवे से मेटाबॉलिक रेगुलेशन होती है। आई रिपीट अगेन, मैप काइनेज का मतलब क्या है? माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन। माइटोजिन इज एनी सब्सटेंस रेगुलेटिंग और कॉजिंग द जीन रेगुलेशन इन द बॉडी। तो माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे, मैप काइनेज पाथवे एंड द PI3 के काइनेज पाथवे जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है, और मैप काइनेज पाथवे जो जेनेटिक रेगुलेशन करता है। तो दिस इज द इंसुलिन। और एक और ये काम करता है PI3 के पाथवे जो GLUT4 को इंटीग्रेट करता है इन द सेल। आई एम नॉट टेलिंग यू इन द डेप्थ डिटेल, यू विल स्टडी इन द सेकंड। बस इतना आपके लिए काफी है, ये रिसेप्टर के बारे में आपको बताना चाहिए। ये टायरोसिन काइनेज है, उसकी लाइगेंड क्या हो गया टायरोसिन काइनेज का? इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं ना बॉडी के, वो भी रिसेप्टर्स करते हैं। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर आपने पढ़ा होगा, और जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं बॉडी के, उसी रिसेप्टर से जाते हैं। आपसे कोई पूछ रहे ग्रोथ फैक्टर्स किस रिसेप्टर से जाते हैं, तो यू विल सेइंग ओनली वन थिंग, दैट इज टायरोसिन काइनेज एंड नथिंग एल्स। इंसुलिन भी ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाता है, तो दैट्स दिस इज आल्सो अ ग्रोथ रिसेप्टर।
सो आपने फिर कहना है कि जब ये एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, वो आगे जाके दो पाथवे चलाता है, या मैप काइनेज पाथवे दैट इज इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, या फिर फोस्फोडिराइल इनोस्टोल 3 काइनेज पाथवे, वो मेटाबॉलिक पाथवे है, वो सेंसेस ऑफ लिपिड प्रोटीन्स ग्लाइकोजन करता है, या फिर वो ग्लूट 4 की इंसर्शन करता है सेल्स के अंदर, इंसुलिन आता है सेल्स के अंदर। जैसे हमने पढ़ा है कि इंसुलिन जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल, दिस इज द मैकेनिज्म। सो इफ देर इज म्यूटेशन इन दिस रिसेप्टर, ग्लूकोज इनसाइड द सेल नहीं आएगी, बॉडी के अंदर अकुमुलेट होती रहेगी, और क्या होगा, डायबिटीज। द डायबिटीज विच इज अ वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। So in this way diabetes can result. So with this we have completed with our the signaling pathway. I hope you understood this. This is very important. There are the six mechanisms and six different pathways. So jazakallahu khairan wa ahsana jazai fi darain. Allah Taala आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी तक करें. If you have any question you can ask me on WhatsApp. So jazakallahu khairan. आप you can leave now.